Start, man. Yeah, in convex mirror. Okay, let us go further and repeat this also. As you can see, this is concave mirror. The rays, the parallel rays, when they fall on the mirror, they are reflected back and they meet at a point which is known as focus. So we can say that they converge at a on the principal axis at a point. This is about concave mirror. When I talk about convex mirror, what happens? The rays again they are parallel and then they are diverging. Diverging means they are thrown back in the direction when they fall apart from each other instead of meeting each other. Now, when you extrapolate those rays behind the mirror, they appear to meet behind the mirror. They are not meeting, they appear to meet, which is shown by the dashed lines, dotted lines. So that the focus of convex mirror is behind the mirror. The focus of concave mirror is in front of the mirror. Now there are terms that are used. Did we do these terms or we are yet to do it? I think we did it. Did it. Yeah. So this is the part of a mirror that is cut down from a sphere of mirror. So what kind of mirror is this? This is a concave mirror. The rays where they meet is known as focus. Then the center of the mirror is known as pole. The line joining focus and pole is known as focal length. The mirror was carved out from a big sphere. The center of that sphere is C, center of curvature. The radius of that sphere is CP, which will be known as radius of curvature. And that's all. So you remember this. Now, when the light is reflected by spherical mirror, there are three rules that you will understand. The first rule is the line that is parallel to principal axis. What happens to that line? It always passes through focus. So we can take a concave mirror. This is a line parallel to principal axis. You will see that after being reflected, it passes through focus. Similarly, in convex mirror, since it is a diverging mirror, the ray is reflected back. But when you extrapolate it, it passes through focus. Another rule is when the line is passing through focus. Now this is my incident ray. When the incident ray is passing through focus, reflected ray becomes parallel to the principal axis. The same remains true with convex mirror also. The only thing is you will have to extrapolate it behind the mirror. So the rule is, I repeat, if the incident ray passes through focus, the reflected ray becomes parallel. And the previous rule was that if the incident ray is passing through is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through focus. What happens when the incident ray passes through center of curvature? It is reflected back and on the exactly same path. It will not deviate at all. It will be reflected back along the same direction, whether it is convex mirror or concave mirror. So do remember, जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसी डायरेक्शन में वापस आती है, as you can see in this figure. अगर इन तीनों के अलावा कोई रे है, मतलब it is not parallel to the principal axis, it is not passing through focus, it is not passing through center of curvature, अगर किसी और एंगल में रे आ रही है तब क्या होगा? So see, this is an incident ray which is making an angle. It is oblique. So it is making an angle with the pole. तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? उसके लिए रूल्स याद करो रिफ्लेक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो समझो ये एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी एग्जैक्टली 30 डिग्री होगा. सिमिलरली for convex mirror also, if incident angle is x, then reflected angle of reflection is also x. अब ये जो चार रूल मैंने आपको सिखाए
ये आप यूज करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अभी हम इमेजेस पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के, तब आप ये रूल्स यूज करेंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कर्वेचर। एंड लेट मी से दिस इज F and we know that F is always equal to R by 2, मतलब radius of curvature का half. Okay. Now, if my ray is parallel to principal axis, let us say my incident ray is parallel to principal axis, क्या होगा reflection के बाद? It passes through, correct. It passes through focus. Now, let me have another example where my principal ray, okay, everything will go. Okay, I'll make it again. So this is C and this is F. Now, suppose my incident ray is passing through focus. तो क्या होगा reflection के बाद बताइए मुझे. What will happen after it is reflected? Parallel to principal axis. It will become parallel to principal axis. And if it is passing through center of curvature, bounces back. Reflected back with the same angle, isn't it? So, if it is passing through the center of curvature, then it is reflected back on the same path. And one last case is, suppose it is neither of this case. It is making some angle x with the pole. Then the reflected ray will also make the same angle x with the pole. समझ में आया आपको? Angle I and angle R will always be equal. ये rules याद रखेंगे और अब हम पढ़ेंगे images formed by concave mirror. We have already done this once. So today I will explain, and then in homework you can draw all these images yourself once again. Exam में you can expect a 3 marks question, like when you will be asked that draw a ray diagram for images formed by concave mirror when the object is placed at 6 positions पढ़ेंगे आप. Infinity, focus, between C and P, like that. Okay? How many students are studying this for the first time? किसी का मिस हुआ था जब मैंने पढ़ाया था तब? Okay, if everybody has done it, I would like to go a little fast. Now we are studying about images formed by concave mirror. जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो उसका इमेज हमको अलग अलग तरह का मिलता है और अलग अलग पोजीशन पे मिलता है. So what you will note down is position of object, position of image. Then you will note down nature of image, and then we can write that separately, and we will also see a table. तो देखो, when the object is kept at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा? इंफिनिटी, मतलब C से बहुत दूर. इमेज कैसा मिलेगा? तो देखो, the rays are coming parallel from the object. After striking the mirror, they get reflected back because they were parallel. क्योंकि रेस पैरेलल थी इसलिए वो कहाँ मीट करेगी? हमेशा फोकस पे. आप ध्यान रखना कि जब आप रे डायग्राम बना रहे हो, एटलीस्ट आप 2 रेस दिखाओ, क्योंकि जहाँ पे 2 रेस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है. तो आप एटलीस्ट 2 रेस दिखाएंगे where they are meeting. When the object is at infinity, image formed is at focus. तो position of object क्या हो गया? Infinity. Position of image कहाँ हो गया? Focus. Size of image क्या हो गया? Highly diminished. देखो point like image मिला है आपको, और आप याद रखेंगे कि concave mirror में हमेशा आपको कैसा image मिलता है? Real and inverting. Okay. Will you be able to do this in homework? Yes, ma'am. Everybody has to draw this in homework and submit on Google Classroom. Okay.
अब हम एक काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस के थोड़ा सा पास लाएंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहाँ आ गया? बियॉन्ड सी। ये हमारा पॉइंट सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज फोकस पे था। अब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया तो इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, आप मिरर के पास जाते हो तो इमेज भी पास आता है, आप मिरर से दूर जाते हो तो इमेज भी दूर जाता है। सेम concept is seen here. So let us see what happens. So this is my object. Now the ray, देखो ये रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से पास होगी बताओ मुझे? It will always pass फोकस। एक रे हमने ऐसी बना दी, एक और रे बनाएंगे क्योंकि हमको कम से कम दो रेस चाहिए इंटरसेक्ट करने के लिए। जहां वो रे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो नाउ दिस हैज गॉन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम डायरेक्शन। वेरी गुड, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट है देखो, इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट है यहाँ हमको अपना इमेज मिलेगा। तो इमेज कैसा मिला देखो, ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। लेकिन पहले हमारा इमेज पॉइंट साइज का था, अब हमारा इमेज पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हुआ है। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लाते जा रहे हो, आपका इमेज बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिला? इट इज बिटवीन सी एंड एफ। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज कॉन्केव मिरर, इमेज कैसा रहेगा? Real and inverted. I hope this ray diagram is clear. Let us move to the third one. When the object is at C. Object C पे है तो image कहाँ बनेगा? देखते हैं। हाँ, पहले देखते हैं। हम object रखते हैं C पे, ये गई parallel to principal axis, तो ये focus से pass करेगी। Let us make one more, which goes from focus. तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये दो रेस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ। तो यहीं पे हम अपना इमेज बनाएंगे एंड यू विल सी कि इमेज सी पर ही बना। और कैसा बना? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सी। Size of the image same as the object. Nature, it is always real and inverted in concave mirror. Is this clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको है ना बहुत सा क्या हुआ? मैम करके वर्चुअल भी बनाता है लास्ट में। हाँ, वो लास्ट लोगों को ना थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आप ड्रॉ करेंगे और आपका ऐसा वाला डायग्राम आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बनाओगे तो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सी पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है वो सी के पहले इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वो सी के बाद इंटरसेक्ट करे। तो आप क्या करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना उसको। मैं एक बार और बता देती हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है ब्लैक बोर्ड पे। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले मिडल ऑफ द पेज लेना। आप हमेशा डायग्राम बनाएंगे मिडल ऑफ द पेज में। उसके बाद यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। क्या करेंगे पहले? यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, रूलर से। फिर आप राउंडर लेना और उससे 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो। तो मैंने अपना राउंडर रखा है यहाँ और मैंने 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक आर्क लगाया इस तरह से कि आपकी जो नोटबुक है उसके 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे तक ये आर्क जाने दो। तो अब ये हो गया M और ये हो गया M डैश, मेरे मिरर का सरफेस। दिस विल बी P और ये जो है ये क्या है? ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर ये CP इज 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे आप रख देंगे फोकस। अब जिस भी तरह से आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही वाला केस ले लेती हूँ जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? C पे रखा। तो फिर से आप एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसको आप 2 सेंटीमीटर का बना सकते हैं।
बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दिक्कत आएगी, बहुत छोटा बनाओगे तो भी दिक्कत आएगी। तो आप एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मेरा ऑब्जेक्ट शायद थोड़ा टेढ़ा था। ओके, अब ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम दे देंगे ए बी। अब क्या करेंगे, कम से कम 2 रेज हम बनाएंगे। फर्स्ट वाली बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो उसका क्या होना है, रिफ्लेक्ट। हाँ, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय फोकस। ठीक है, और फिर हम दूसरी रे बनाएंगे विच इज पासिंग थ्रू फोकस। सो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी जो रे है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करती हूँ, पहले मैं ये बना लेती हूँ यहाँ से। आई एम सॉरी, द स्क्रीन पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं आ रही है मेरी। ओके, लेकिन ये देखो मेरी जो इमेज है वो भी 2 सेंटीमीटर की बननी चाहिए। सो नाउ आई कैन मेक दैट ओके, दिस विल पास थ्रू फोकस। पर आपका ध्यान रहे कि अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो बी ए भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और इसके साइड में आप इसका लिटरेचर लिखेंगे। लिटरेचर में आप क्या क्या लिखेंगे, so you will write position of object। क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट सी। फिर आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बनी इमेज, एट सी। फिर आप लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, सेम साइज। in this case it is same size। same size as what, पूरा सेंटेंस लिखेंगे same size as object। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, मेरा इमेज भी 2 सेंटीमीटर है। और क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ image, Real and inverted। so it will be real and inverted। I hope this is clear। तो 3 मार्क्स के लिए इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। If you want, you can take a screenshot। Let's go further। चौथा केस लेते हैं। अभी तक हमने 3 केस पढ़े हैं। When the object was at infinity, when object was beyond C, when object was at C। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास ले जाएंगे। इमेज कहाँ जाएगा, फोकस से और दूर जाएगा। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहाँ मिलेगी देखते हैं। सबसे पहले एक रे बनाएंगे, बिकॉज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस। एक और बनाएंगे पासिंग थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहां दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे हमको इमेज मिलेगा। अब देखो, पहली बार आपको इमेज कैसा मिला है, मैग्नीफाइड। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का बनाया था, आपको इमेज कम से कम 3 सेंटीमीटर का मिलना चाहिए। और उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है बियॉन्ड सी। तो एक बार वापस मेरे साथ रिपीट करेंगे सब कुछ। टेल मी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट Between C and F। वेरी गुड। Between C and F। पोजीशन ऑफ इमेज Beyond C। Beyond C। Beyond C। नेचर ऑफ इमेज, Real and inverted। साइज ऑफ इमेज, Enlarged। तो ये हो गया हमारा 4th केस। अब हम 5th केस करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। अब देखते हैं क्या होता है। सो आपको याद है कि जब हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, तब हमको इमेज कहाँ मिला था, फोकस पे। तो अब हमको बस पोजीशन स्विच करनी है। जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलना चाहिए। लेट अस सी मिलता है या नहीं।
So this is parallel to principal axis, then it will pass through focus. एक और रे बनाएंगे. अब ये कैसी रे बनाई मैंने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है मेरी इंसिडेंट रे. कैन यू टेल मी व्हाट वुड हैपन टू द रिफ्लेक्टेड रे? Reflected back in the same direction. Correct. Reflected back along the same direction, the same path. तो देखो ये दो रेस तो मीट ही नहीं कर रही है. If they are not meeting, मेरा इमेज कहाँ बनेगा? मेरा इमेज बनेगा इंफिनिटी में. मुझे प्लेन क्रॉस कर करके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर जाना पड़ेगा ये इमेज बनाने के लिए. So we will accept that image is formed at infinity. और ये इमेज कैसा बनेगा? Highly enlarged. मतलब अगर मुझे किसी भी चीज का इमेज बड़ा देखना है, जैसे मुझे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करना है, तो मुझे कॉनकेव मिरर लेना होगा और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना होगा? फोकस पे. अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करूंगी तो मुझे इमेज बहुत दूर मिलेगा और एनलार्ज मिलेगा. लास्ट केस है ये कॉनकेव मिरर का, इसको ध्यान से समझेंगे. अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास ले लिया मिरर के पोल के. आई हैव केप्ट इट बिटवीन F and P. ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P, लेट अस ट्राई टू मेक द इमेज. दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू फोकस. एक और रे बनाएंगे टू गेट द इमेज. नाउ this is passing through center of curvature. तो जैसे आपने मुझे बताया it will be reflected along the same path. अब देखो these rays are diverging. आप इनको कितना भी एक्सट्रापोलेट करोगे ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो इसको इंटरसेक्ट करना है तो क्या करूंगी मैं? I will take it behind the mirror. इसको मैं एक्सट्रापोलेट करती हूँ बिहाइंड द मिरर. देखते हैं क्या बना एक्सट्रापोलेट करने से. नाउ दे हैव इंटरसेक्टेड. और कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए ये? बिहाइंड द मिरर. बट क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने तो इसको एक्सट्रापोलेट किया है ना इंटरसेक्ट करने के लिए, तो मेरा जो इमेज बना वो पहली बार कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट. So if I ask you that where should I keep the object so that with concave mirror I get enlarged, virtual and erect image. तो आप मुझे क्या बताएंगे? मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? देखो दिस इज ऑल वेरी लॉजिकल, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है. Although there is a table given in your textbook कि जहाँ पे position of object, position of image, size of image, nature of image ये बताया हुआ है. But this is very logical, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप भी खुद ब खुद याद रख सकते हैं applying the logic. Please stop the recording.